Hello, welcome back once again in Basic Electronics practical session. So today we are going to see our last practical session of this subject in this SAM is practical number 28 of your manual, build and test Zener voltage regulator for the given voltage. As we have already covered in our theory session, Zener diode as voltage regulator. So this is the experiment related to that concept only. We have to build and test Zener voltage regulator for the given voltage. So in this practical, we have to understand Zener diode as voltage regulator, how the output voltage is going to be constant in spite of changing or increasing input voltage. So this is the circuit diagram which we have already understood in our theory session. This is the circuit diagram of Zener diode shunt regulator, voltage regulator. So here the Zener diode, as you can see, it is used in parallel to the load. That's why it is also known as Zener diode shunt regulator. This is the load resistance RL. This is the series resistance RS where the voltage drop. This is the main input supply voltage. So as we are going to increase the input supply voltage, the output voltage will remain constant with the rating of this Zener diode, because this Zener diode comes in parallel to the load resistance RL. So whatever the voltage appear across this Zener diode, it is only the output voltage VU. So if you go on increasing the input supply voltage, your output voltage will remain constant. So the increase in supply voltage is going to be appear across this series resistors RS. So the voltage drop across this RS will be more if you go on increasing your supply voltage, because the output voltage across this Zener diode will remain constant, because this Zener diode, it comes in parallel to this load resistance RL. So whatever the output voltage of this Zener diode, that only the output voltage of this circuit. So this is a Zener diode diagram also, symbol also. Now in this experiment, what we have to do, we have to calculate two things: line regulation and load regulation of this circuit. What do you mean by line regulation? What do you mean by load regulation? That concept is also we have already covered in our theory part session. So line regulation is nothing but change in output voltage with respect to change in input voltage by keeping load resistance constant. So as you can see in this observation table, the first table is asking us to calculate line regulation by keeping the load resistance constant. So if we are keeping the load resistance constant, the output load current will remain constant. So here it has asked us to keep load current at 10 milliampere. So in this table, for calculating line regulation, we have to keep the load resistance constant in such a way that the load current is going to be constant at 10 milliampere. Now what we have to do further, we have to vary the input supply voltage V in, and respectively we have to find out the output voltage. The output voltage is nothing but the voltage which is appearing across the Zener diode. That's why it is also showing over here VZ. So VZ is nothing but the voltage which comes appear across the Zener diode. That only the voltage is nothing but the output voltage of the circuit. So first, in the first table, we have to calculate line regulation. For calculating the line regulation, first we have to keep the constant load resistance constant in such a way that load current must be 10 milliampere, and we have to vary the input voltage, and respectively we have to note down the output voltage. So the procedure is also given to you in this manual. Connect the circuit as shown in the figure. Keep load resistance fixed value. Vary DC input voltage from 5 volt to 15 volt. So we have to vary the input supply voltage from 5 volt to 15 volt. Record the output voltage as a load voltage with high line voltage, and as a load voltage with low line voltage VLL in the observation table. So means just we have to vary the input supply voltage from 5 volt to 15 volt, and we have to respectively note down the output voltage. For example, if the Zener diode voltage is rating of 7 volts, so output voltage is going to be constant at which volt? 7 volt only. If you go on increasing the input supply voltage, but your output voltage, it is going to show only 7 volt. So this thing we have to calculate the line regulation. So for this also, now we are going to see the simulation part. So in our simulation part, we are using the virtual lab site. So as you go in virtual lab site, you will able to see, as you go in your virtual site. So virtual lab site, it is having Zener diode line regulator. You must be able to see the Zener diode line regulator, Zener diode load regulation.
So all these thing is given in your virtual lab site list of experiment. You are able to see the Zener diode voltage regulator part, and in Zener diode voltage regulator part, you are able to see these things: Zener diode line regulation, Zener diode load regulation. So we are under Zener diode line regulation. So for this Zener diode line regulation, this is the circuit which is exactly showing here, which we have already studied in our theory part. Series resistor RS supply voltage, DC supply voltage, varying DC supply voltage. Now this is the series current IS, this is the load current IL, this is the load resistance RL, the output voltage VO, the current flowing through this Zener diode is IZ, and the Zener voltage reading is going to be appear over here. So first what we have to do, we have to keep the load resistance constant in such a way that the load current must be of how many milliampere? 10 milliampere. So first we are going to vary. First we have to adjust the series resistance RS. Series resistance RS. So in series resistance RS we have to use 1 kilo ohm, means 1000 ohm. So this 1000 ohm is nothing but 1 kilo ohm. So series resistor RS is 1 kilo ohm. Now we have to keep the load resistance constant in such a way that the load current must be of how many milliampere? 10 milliampere. And we are similarly we have to decide this rating also of Zener diode. So how much voltage rating Zener diode you want? You want to keep your Zener diode for which volt, which rating? For example, if I am keeping my Zener diode at 7 volt rating, so I have kept the Zener voltage rating at 7 volt. So I have to adjust the load resistance in such a way that this load current must be of how many milliampere? 10 milliampere. Yes. Now I am able to make constant at 10 milliampere. So now load current is kept constant at 10 milliampere. Series resistor is kept constant at 1 kilo ohm. Now we have to vary the input supply voltage and respectively note down the output voltage. So we have to vary the input supply voltage from which volt to which volt, from 5 volt to 15 volt. As in our observation table, it has asked to vary the input supply voltage from 5 volt to 10 volt. So we are going to vary the input supply voltage between 5 volt to 10 volt. Okay, not exactly keeping 5 volt, something in that range only. Okay, let us take it 5.6 volt, add to the table. So 5.6 volt, next reading. Randomly we can take this also. Just we have to vary the input supply voltage between 5 volt to 15 volt. Add to the table. Next supply voltage 10 volt, add to the table. 13 volt, add to the table. 15 volt, add to the table. So as you can see, this is the table. So here in this table, what you are able to see, the Zener diode voltage which we have kept operating 7 volt. Series resistance RS is kept constant at 1 kilo ohm. Load resistance is kept at 0.7 kilo ohm, means 700 ohm respectively. Your load current is, that's why, 10 milliampere. So as in our observation table, it has asked us to keep load current constant at 10 milliampere. So by adjusting the load resistance, we have kept the load current constant at 10 milliampere. Now we are varying the input supply voltage. That's why it is showing unregulated supply voltage Vs.
So we are varying the input supply voltage between the range from 5 volt to 15 volt. So as you are able to see, we are varying the supply voltage from 5.6 to 15 volt, means in the range of 5 to 15 volt. So respectively, you are able to see the Zener current flowing through the Zener diode in milliamperes. This is the output voltage. So output voltage, what you are able to see, the output voltage is constant at 7 volt. Why? What is the reason the output voltage is kept constant at 7 volt? Because your Zener diode is of rating how much volt? 7 volt. If you increase the Zener diode rating respectively, you will able to see the change in the output voltage also. So the output voltage of the Zener diode as voltage regulator is nothing but the voltage which is appear across this Zener diode. So whatever the output voltage appear across this Zener diode, that only the output voltage of this circuit. The output voltage will remain constant at that volt only. So whatever the change you are increasing in the supply voltage, that change is going to be appear across this series resistance RS. So accordingly the series resistance RS voltage drop is going to be increased. समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो जो भी अमाउंट में हम लोग इनपुट सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे, तो उसके अमाउंट के हिसाब से आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस सीरीज रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज उतने पे कांस्टेंट रहेगा. कितने पे कांस्टेंट रहेगा? 7 वोल्ट पे कांस्टेंट रहेगा. क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि ज़ेनर डायोड आपने कितने वोल्टेज का रेटिंग का लिए? 7 वोल्ट का लिए. तो आउटपुट वोल्टेज जो है पूरी सर्किट का वो ज़ेनर डायोड के सामने का ही वोल्टेज होता है. तो कितना परसेंट रेगुलेशन हो रहा है यहाँ पे परसेंटेज में लिखा हुआ है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन यू आर ऑब्टेनिंग. तो परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन क्या होता है, फॉर्मूला आपको बता चुका था, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज. तो कितना चेंज आप आउटपुट वोल्टेज में लगा रहे हो, तो अपॉन में कितना चेंज आपको इनपुट वोल्टेज में मिल रहा है. तो आपको यहाँ पे 100% यहाँ तक मिला आपको. फिर उसके बाद से आपका परसेंटेज रेगुलेशन कम हुआ, क्योंकि अमाउंट ऑफ चेंज इन इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से कैलकुलेशन है. तो ये परसेंटेज रेगुलेशन आपके सामने दिया हुआ है, दिखाया हुआ है. ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी रहती है, लिखनी रहती है. तो आपके एक्सपेरिमेंट में मैनुअल में क्या दिया होता है वो देखना है. आप ये ग्राफ को प्लॉट भी कर सकते हो. इफ यू प्लॉट दिस ग्राफ, तो आपको ग्राफ प्लॉट होता हुआ दिखाई देगा. आप जो अमाउंट से आप वेरी कर रहे थे इनपुट सप्लाई वोल्टेज को, तो 5.5 की रेटिंग से आपने 5.6 से आपने वेरी किया. 5.6 के हिसाब से इनिशियली वो वेरी हुआ, फिर 7 वोल्ट जैसी आया, वैसी 7 वोल्ट के बाद से आपका आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट हो गया. आप जो भी अमाउंट में आप इंक्रीज कर रहे हो सप्लाई वोल्टेज, वो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर विच रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन. तो आउटपुट वोल्टेज आपका कांस्टेंट हो चुका है इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग एट द सप्लाई वोल्टेज Vs. तो Vs को आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी आपका आउटपुट वोल्टेज 7 वोल्ट पे कांस्टेंट है. तो ये सेम चीज जो है ना, आपको अपने मैनुअल में यही सब चीज नोट डाउन करना है. तो जो मैं आपको शो कर रहा हूँ सेम चीज आपको अपने मैनुअल में लिखना है. लोड करंट आपने 10 मिली एम्पियर पे कांस्टेंट रखा है, वो ठीक है. इनपुट सप्लाई वोल्टेज का जो आपको पॉइंट्स मिल रहा है वो लिखो, और आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिल रहा है वो लिखो. तो जो ऑब्जर्वेशन में आपको कहा गया है करने के लिए, सेम यही ऑब्जर्वेशन आपको आपके मैनुअल में नोट डाउन करना है, लिखना है. तो इन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पूछा है लाइन रेगुलेशन के लिए IL 10 मिली एम्पियर, ठीक है. तो जो वी इन वोल्टेज हम लोग ने वेरी किए, वो वी इन के हिसाब से जो आउटपुट वोल्टेज मिला आपको लिखना है, नोट डाउन करना है. लास्ट में आपको यहाँ पे पूछा है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइन रेगुलेशन. तो लाइन रेगुलेशन का परसेंटेज लिखना है, क्या मिला आपको. तो जो आपको इधर पे मिल रहा है वो आपको लिखना है. लाइन रेगुलेशन का जो आपको मिल रहा है इधर पे परसेंटेज, तो यू आर एबल टू सी द परसेंटेज. तो आप एक बीच की मिडिल वैल्यू में परसेंटेज रेगुलेशन का दे सकते हो. ये वैल्यू था 10.8 पे आपको कितना मिल रहा है, 7 वोल्ट. वो हिसाब से आपका इधर पे परसेंटेज रेगुलेशन कितना शो हो रहा है, 70%. तो यू कैन टेक दिस मिडल वैल्यू फॉर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन. तो ये ऑब्जर्वेशन आपको इस तरीके से कंप्लीट करना रहेगा. आपके मैनुअल में ग्राफ भी इसके जैसा ही आपको रिप्रेजेंट करना है, बनाना है. जो ग्राफ आपको इधर पे दिख रहा है सेम ये ग्राफ आप अपने मैनुअल में भी प्लॉट करेंगे, बनाएंगे इधर पे. फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इसके बाद कंटिन्यूएशन पार्ट में अभी आपको क्या करना है, कौन सा पार्ट करना है, लोड रेगुलेशन. नाउ लोड रेगुलेशन के लिए क्या बोला है, इनपुट वोल्टेज को 10 वोल्ट पे कांस्टेंट करो और लोड करंट और आउटपुट वोल्टेज की रीडिंग को नोट डाउन करो. तो अब इसके लिए क्या बोला गया, इनपुट वोल्टेज को आप 10 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दो, और किसको वेरी करो, लोड करंट को वेरी करो, और रिस्पेक्टिवली आउटपुट वोल्टेज को नोट डाउन करो. तो हम लोग अभी लोड रेगुलेशन पार्ट में जाना पड़ेगा. वी हैव टू सी द लोड रेगुलेशन पार्ट. तो ये तो आपका हो गया, लाइन रेगुलेशन वाला पार्ट हो गया. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड लोड रेगुलेशन पार्ट. तो ज़ेनर डायोड लोड रेगुलेशन. तो ज़ेनर डायोड लोड रेगुलेशन का ये टेबल आपके सामने आ गया, सिमुलेशन ये सामने आ गया. अभी हमको क्या करना है, लोड रेगुलेशन में
इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाना है 10 वोल्ट पे। तो पहले आप जेनर डायोड की रेटिंग डिसाइड कर लो कितने रेटिंग का रखना है। फॉर एग्जांपल जेनर डायोड का वही रेटिंग रखना है 7 वोल्ट का, तो कीप दिस एट 7 वोल्ट पे रखो इसको आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 वोल्ट पे रख दो इसको। तो जेनर डायोड का रेटिंग हम लोग ने 7 वोल्ट पे रख दिए। सीरीज रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट था 1 किलो ओम का, उसको 1 किलो ओम पे ही रखो, उसको चेंज मत करो। 1000 ओम इज नथिंग बट 1 किलो ओम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। इनपुट वोल्टेज को आपको कितने पे कांस्टेंट रखना है, 10 वोल्ट पे, तो आप उसको 10 वोल्ट पे कांस्टेंट रखो। तो इनपुट वोल्टेज जो है आपका VDC सप्लाई वोल्टेज 10 वोल्ट पे आपने रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लोड करंट के हिसाब से, लोड करंट को वेरी करके आपको क्या नोट डाउन करना है, आउटपुट वोल्टेज नोट डाउन करना है। तो लोड करंट को वेरी करने के लिए आपको किसको चेंज करना पड़ेगा, लोड रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो बाय चेंजिंग द लोड रेजिस्टेंस, अब आप क्या नोट डाउन करोगे, लोड वोल्टेज को नोट डाउन करोगे। तो हम लोड रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करके लोड करंट की वैल्यू को नोट डाउन करते जाएंगे। तो अलग अलग पॉइंट के हिसाब से आप ले सकते हो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 188 ओम है, तो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से आपका लोड करंट कितना आ रहा है और आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है वो आपको लिखते जाना है, नोट डाउन करते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 275 ओम है, तो यहाँ से आप वेरी करो लोड करंट कितना हो रहा है वो रीडिंग नोट डाउन करो, आउटपुट वोल्टेज कितना हो रहा है वो देखो उधर पे। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग वेरी कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करो, कोई भी वैल्यू से, ऐड टू टेबल लेते जाओ, बढ़ाते जाओ, ऐड टू टेबल लेते जाओ, रैंडमली आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ओके, तो हम लोग ने सफिशिएंटली ले चुके हैं। नाउ व्हाट यू आर एबल टू ऑब्जर्विंग इन दिस, पहले तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, डीसी वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज आपने कितना वोल्ट का दिए हुए, 10 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज आपने कितने का दिया, 10 वोल्ट का। जेनर का वोल्टेज कितना आपका, 7 वोल्ट। सीरीज रेजिस्टेंस आपका कितना, 1 किलो ओम का। ये सब चीज आपने जो पहले कर दिए थे ना। हो अब आपने क्या किया, लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके क्या किया, लोड करंट को वेरी करते गए। तो लोड करंट के हिसाब से आपका वेरी होकर अब आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है वो नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर पे। अब आप क्या कर रहे हो, लोड रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हो तो लोड करंट चेंज हो रहा है, बट योर जेनर करंट इज नॉट चेंजिंग। जेनर करंट आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए आउटपुट वोल्टेज में आपको कितना दिखाई दे रहा है, 10 वोल्ट का दिखाई दे रहा है। तो जेनर का इफेक्ट आपको इधर पे नजर नहीं आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज में भी आपको कितना दिखाई दे रहा है, 10 वोल्ट, बिकॉज नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू दी जेनर डायोड। जेनर डायोड के पास से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आप डायरेक्टली लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके क्या कर रहे हो, लोड करंट को चेंज कर रहे हो। तो लोड करंट को चेंज कर रहे हो इधर पे, लोड करंट आपका वेरी हो रहा है और आउटपुट वोल्टेज आपका इट इज गोइंग टू बी अपीयर कांस्टेंट एग्जैक्टली एट 10 वोल्ट। जो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, वही इनपुट वोल्टेज आपको इधर पे आउटपुट वोल्टेज में दिख रहा है इधर पे। जेनर करंट के पास कोई करंट फ्लो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोड करंट लोड रेजिस्टेंस को वेरी करे, लोड करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो लोड करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे आपको इधर पे दिखाई दे रहा है चेंज इन लोड करंट वैल्यू, और क्या रिस्पेक्टिव आउटपुट वोल्टेज है वो आपको इधर पे दिखाई दे रहा है। दिस इज द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ योर लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन का ये आपका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन है। अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ में नजर आएगा आउटपुट वोल्टेज इज गोइंग टू बी अपीयर कांस्टेंट एट 10 वोल्ट ओनली whatever the value you are changing of load resistance। तो जो भी आप लोड रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हो, आउटपुट वोल्टेज क्या आपका कांस्टेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं, लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन का मतलब क्या, लोड रेजिस्टेंस को वेरी करके आप लोड करंट को वेरी कर रहे हो बट आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज आपका क्या है, कांस्टेंट। तो जैसा अगर आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वो हिसाब से आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वेरी होगा, चेंज होगा। अगर फॉर एग्जांपल इनपुट का वोल्टेज हम लोग कम कर देते हैं, अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 8 वोल्ट कर दिया, तो 8 वोल्ट करने पे आपको क्या मिल रहा है इधर पे, आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट ही मिल रहा है। तो वॉट एवर द इनपुट वोल्टेज यू आर गिविंग यू आर गेटिंग एग्जैक्टली द 8 वोल्ट वोल्टेज। तो 8 वोल्टेज मिल रहा है आपको, इनपुट का जो है वो एग्जैक्टली आपका आउटपुट में मिल रहा है इधर।
तो आपको इधर पे भी ये मैनुअल में क्या करना होगा, लोड रेगुलेशन के लिए सेम टेबल की वैल्यू आपको लिखना है। इनपुट वोल्टेज को आपने 10 वोल्ट पे कांस्टेंट रखे थे, लोड करंट की जो वैल्यू आपने वेरी की वो लिखो। आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिल रहा है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, वो 10 वोल्ट का वोल्टेज आपको लिखना है। इट इज नॉट फॉलोइंग एग्जैक्टली द जेनर डायोड वोल्टेज, इट इज फॉलोइंग द इनपुट सप्लाई वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज इट विल रिमेन कांस्टेंट, वॉट एवर द इनपुट वोल्टेज आप जो दे रहे हो वही आउटपुट में आपको एम्पियर हो रहा है, वही मिल रहा है आपको। ओके, सो ये था आपका एक्सपेरिमेंट जो आपका बाकी था। तो मैंने सेम चीज़ आपको इधर पे बताया, जो आपको सिमुलेशन में मिल रहा है वही रीडिंग को लिखना है, वही आपको परसेंटेज यहाँ पे लिखना है, और आपके मैनुअल को ग्राफ में भी बना के कंप्लीट करना है। ये दोनों चीज़ आपको इधर पे कंप्लीट करना है। आउटपुट वोल्टेज क्या क्या मिल रहा है, लोड रेजिस्टेंस मिनिमम करने पे, लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम करने पे लोड करंट कितना है, यहाँ पे लिखना है आपको जो लोड रेगुलेशन के हिसाब से। तो जब आपने RL मिनिमम था, मिनिमम लोड रेजिस्टेंस था, तो आउटपुट वोल्टेज कितना है और लोड करंट कितना है वो देख के लिखना है। और RL जब मैक्सिमम था तो आउटपुट वोल्टेज कितना है और लोड करंट कितना है। तो यानी ये टेबल का ही देख के आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, ये टेबल का ही देख के जो अपन सेकंड टेबल का किए है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है, तो लोड रेजिस्टेंस मिनिमम में आपका इधर पे आउटपुट अपना लोड करंट कितना है वो लिखना है, और लोड वोल्टेज अपना आउटपुट वोल्टेज कितना है वो लिखना है। सिमिलरली लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम, यानी ये लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे कितना आपका लोड करंट फ्लो हो रहा है वो लिखना है इधर पे, और आउटपुट वोल्टेज कितना है वो लिखना है। तो ये आपको इधर पे कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, ये कंप्लीट करना है। इसी तरीके से इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन लिखना है, और दोनों का आपको ग्राफ बनाना है, लाइन रेगुलेशन का भी और लोड रेगुलेशन का भी आपके इधर पे मैनुअल में। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर ये प्रैक्टिकल के हिसाब से। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? तो ये आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करके फिर फाइनली सबमिट करना है। So that's all for today's practical session. Thank you all of you for joining this understanding. Thank you very much.